Lok Adalat. What is Lok Adalat? Lok Adalat are alternative dispute resolution mechanisms in India. They serve as a forum for resolving disputes, both at pre-litigation and post-litigation stages, outside the conventional court system. Lok Adalat features स्वैच्छिक भागीदारी विवादित पक्षों को लोक अदालत की कार्यवाही में भाग लेने के लिए स्वेच्छा से सहमत होना होगा। यह सुनिश्चित करता है कि प्रक्रिया जबरदस्ती नहीं है और दोनों पक्ष समाधान तलाशने के इच्छुक हैं। कोई कोर्ट फीस नहीं। लोक अदालत में मामला दायर करने से जुड़े कोई कोर्ट फीस नहीं है। यदि कोई मामला नियमित अदालत में विलंबित है और लोक अदालत द्वारा हल किया जाता है तो पहले से भुगतान की गई कोई भी अदालती फीस आमतौर पर वापस कर दी जाती है। सुलह पर ध्यान। लोक अदालतें बातचीत और मध्यस्थता के माध्यम से सौहार्दपूर्ण समाधान को प्राथमिकता देती हैं। सदस्य जिनमें अक्सर न्यायाधीश और कानूनी पेशेवर शामिल होते हैं, बातचीत को सुविधाजनक बनाने और पार्टियों को पारस्परिक रूप से सहमत समाधान तक पहुंचने में मदद करने के लिए सुलहकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। गति और दक्षता। पारंपरिक अदालती कार्यवाही की तुलना में लोक अदालतों का लक्ष्य त्वरित समाधान होता है। यह अनौपचारिक प्रक्रियाओं और औपचारिक निर्णय के बजाय समझौते पर पहुंचने पर ध्यान केंद्रित करके हासिल किया जाता है। व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए लोक अदालतें राष्ट्रीय, राज्य, जिला और तालुका सहित विभिन्न स्तरों पर स्थापित की जाती हैं। यह उन्हें दूर दराज के क्षेत्रों के लोगों और उन लोगों के लिए सुलभ बनाता है जिन्हें औपचारिक अदालती कार्यवाही में कठिनाई हो सकती है। बाध्यकारी समझौता। लोक अदालत में किया या कोई भी समझौता दोनों पक्षों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होता है। इसका मतलब यह है कि सहमत समाधान अदालती डिक्री के रूप में लागू करने योग्य है। अनौपचारिक कार्यवाही। लोक अदालत की कार्यवाही नियमित अदालतों की तुलना में औपचारिक होती है। अधिक अनौपचारिक और सुलभ माहौल को बढ़ावा देने वाली कोई तकनीकी प्रक्रिया या कानूनी शब्दजाल नहीं है। अकानूनी सेवा प्राधिकरणों की भूमिका। लोक अदालतें अक्सर कानूनी सेवा प्राधिकरण (LSA) द्वारा आयोजित और समर्थित होती हैं, जो हाशिए पर रहने वाले समुदायों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं। संक्षेप में, लोक अदालतें पारंपरिक अदालत प्रणालियों के लिए एक लागत प्रभावी, सुलभ और कुशल विकल्प प्रदान करती हैं, जो विवादों के सुलह और सौहार्दपूर्ण समाधान पर जोर देती हैं। Types of Lok Adalat. Permanent Lok Adalats. These are established under Section 22 of the Legal Services Authorities Act. They handle disputes related to public utility services like transportation, postal services, and telecommunications. PLAS have jurisdiction up to 10 LAF, and their decisions are final and binding. National Lok Adalats. These are organized regularly, often monthly, across India on specific themes. They aim to resolve a large number of pending cases on a single day. They cover various case types, including motor vehicle accident claims, family disputes, property disputes, and consumer grievances. State Lok Adalats. These are organized by state legal services authorities. They can be conducted on a weekly, monthly, bi-monthly, or quarterly basis, depending on the needs of the states. Other types of Lok Adalats. District Lok Adalats. These are conducted at the district level. A Taluk Tehsil Lok Adalats. These are conducted at the Taluk or Tehsil level. A Mobile Lok Adalats. These are conducted in remote areas, providing accessible legal services. A Mega Lok Adalats. These are organized in a state on a single day, similar to national Lok Adalats, but with a larger scale. A continuous Lok Adalats. These operate continuously over a period, allowing for ongoing hearings and settlements. A daily Lok Adalats. These are organized on a daily basis. Process Lok Adalat. Lok Adalat's system has been developed to deliver fast yet accessible solutions. The system minimizes time-consuming court proceedings by providing mediating parties with compassionate intermediaries to help them settle their disagreements.
Lock Adalat's function through this easy process, which contains these sequential steps. Step 1. Referral to Lock Adalat. The Lock Adalat receives cases from both judicial court referrals and when disputing parties choose to initiate their own settlement process. Some judicial cases get sent to Lock Adalats through official channels from legal services organizations or by court appointment in public interest legal matters. Step 2. Preliminary hearing. During the presentation, each party details their positions in an informal manner for the dispute. The Lock Adalat bench contains a judge or retired judge together with social workers or lawyers and other experienced members to support mediation of the situation. Step 3. Mediation and negotiation. The Lock Adalat bench functions as a mediator between parties so they can clarify their requirements as well as their needs and interests to each other. A consensus between all parties becomes the central goal of negotiations at this phase. Step 4. Settlement. Parties sign a written settlement together with both the bench members of Lock Adalat after reaching a mutual agreement during the hearing. A court decree status exists for the agreement while treating it as a binding legal document. Step 5. Non-settlement. The hearing reveals unsuccessful settlement attempts. Thus, the case will return to court for additional activities. लोक अदालत के लाभ। ये लोक अदालत लोगों को त्वरित किफ़ायती कानूनी समाधान प्राप्त करने में मदद करने के लिए कई अनुकूल लाभ प्रदान करती है। लोक अदालत एक आवश्यक साधन के रूप में कार्य करती है जो न्यायिक बैकलॉग को कम करने में मदद करती है और अधिक लोगों को प्रभावी ढंग से न्याय तक पहुंचने में सक्षम बनाती है। लोक अदालत में इन समस्याओं का निपटारा कम समय में हो जाता है जिससे लंबी अदालती प्रक्रिया का समय कम हो जाता है। लोक अदालत आवश्यक जटिल मामलों को संभालने के लिए पारंपरिक अदालतों की मांग को करती है ताकि ये अदालतें अधिक कुशलता से काम कर सकें। आर्थिक रूप से कम आय वाले व्यक्तियों सहित हर कोई इस कार्यक्रम तक पहुंच सकता है क्योंकि इसमें न्यूनतम या कोई संबद्ध लागत नहीं है। लोक अदालतों में सौहार्दपूर्ण विवाद निपटारे के माध्यम से सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा मिलता है जिससे इसमें शामिल सभी पक्षों के बीच संबंधों और समझ में सुधार होता है। लोक अदालतों में प्रतिभागियों को अपने कानूनी अधिकारों और विवाद समाधान तंत्र के बारे में अधिक जागरूकता मिलती है। क्या लोक अदालत के फैसले को चुनौती दी जा सकती है? हालांकि इस सामान्य नियम के कुछ अपवाद हैं। धोखाधड़ी या शरारत। यदि यह साबित हो सके कि लोक अदालत का पुरस्कार धोखाधड़ी या शरारत के माध्यम से प्राप्त किया गया था तो इसे चुनौती दी जा सकती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई पक्ष यह प्रदर्शित कर सकता है कि समझौता दबाव में किया गया था या एक पक्ष को गुमराह किया गया था तो उनके पास पुरस्कार को चुनौती देने का आधार हो सकता है। आज्ञा पत्र। यदि किसी पीड़ित पक्ष को लगता है कि लोक अदालत का फैसला अधिकार क्षेत्र के बिना या कानून का उल्लंघन करके दिया गया है तो वे संविधान के अनुच्छेद 220(6) या 220(7) के तहत रिट याचिका के माध्यम से इसे चुनौती देने में सक्षम हो सकते हैं। तृतीय पक्ष। एक तीसरा पक्ष जो विवाद का प्रत्यक्ष पक्ष नहीं है लेकिन लोक अदालत के फैसले से प्रभावित है वह भी घोषणा के लिए मुकदमा दायर करके इसे चुनौती देने में सक्षम हो सकता है। जटिल तथ्यात्मक मुद्दे। यदि मामले में जटिल तथ्यात्मक मुद्दे शामिल हैं तो लोक अदालत के फैसले को सीधे चुनौती देने के बजाय किसी तीसरे पक्ष को नागरिक उपचार अपनाने के लिए निर्देशित किया जा सकता है।